Hello, good morning, FIBCom students. Good. Good morning. Okay, shall we start? Shall we start? Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Once again, I will repeat Yes. the downward communication because I don't think so that you have understood it. I will repeat it. Then I will go further. Okay. Downward communication. Okay, so downward communication when orders, direction, instructions, information flow downward from the superior to the subscriber or to the subordinate. It is called downward communication. Downward communication is necessary. It helps to unit and bind the different levels of authority within the organization and thus preserve the organizational and communication structure. So here that yesterday we were also talking about the downward communication, vertical communication and which communication? Horizontal communication, na? Horizontal communication. Yesterday we were discussing about horizontal communication, vertical communication and downward communication. Okay, so downward communication, what we can say that? Downward communication, what we can say that? Which goes from the orders, the directions or the instructions flow downward from superior to subordinate, here from managing direction to employees. So it is called downward communication. Do you understand? Do you understand? Yes or no? Ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Yes, Then ma'am. we will go further. Ma'am. That advantages. That what are the advantages of the downward communication? The first point is organizational discipline. The downward communication follows the organization's hierarchy, meaning the organization discipline members, the compliance is much easier to maintain. So whenever the downward communication is used, that it is used for discipline also. Okay, that for example when we get the notice, okay, yesterday do you get something notice? Yesterday did you get the notice? Did you get the notice something on your group? Yes or Yes, no? ma'am. Yes or no? Yes. Which notice? Which notice is given to you for all over the students? Online lectures. About Online lectures. lectures. Okay, online lectures, those the students who are not attending the lectures, though they have the all the facilities, for them means it is applicable to all. It is applicable to all, am I right? It is applicable to all, am I right na? So discipline should be maintained. Okay, Yes, so ma'am. what happened whenever the notice is given to you? What happened to you? Which kind of the work will you do? Tell me. Suppose notice is given to you, notice is conveyed to you, then which kind of the work will be done after this discipline? What will happen? क्या होगा? नोटिस आपको भेजा, कल आपको नोटिस मिला, ग्रुप में मैसेज मिला, एम आई राइट? सबको नोटिस मिला कि ऑनलाइन लेक्चर्स के बारे में था, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? क्या होगा? सुन भी रहे हैं? क्या होगा? एक तो क्या होगा, मैं बताऊं? मैं बताऊं? हेलो, हाँ मैम बताइए. ओके। मैम बताइए। क्या होगा कि फॉर एग्जांपल सच्ची में जिसको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इश्यू है, वो बच्चों को एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व हो सकता है कि फॉर एग्जांपल उनका हम समझ के लेते हैं कि हाँ बाबा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन जो बच्चे अभी हमारे, आपको पता नहीं शायद हमारे क्लास में कितने बच्चे, अबव 100, अभी लेक्चर कितने अटेंड करते हैं? अभी लेक्चर कितने अटेंड करते हैं? 40 अटेंड करते हैं। तो जो अटेंड करते हैं उसको नुकसान होगा क्या? नहीं ना। जो अटेंड कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो नोट्स निकाल रहे हैं, उसको नुकसान होगा क्या एग्जाम के टाइम में? नहीं होगा ना, नहीं होगा। एम आई राइट? एम आई राइट? और जो लेक्चर अटेंड ही नहीं करते, कि जो लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो उनको दिक्कतें आने वाली हैं। कौन सा पॉइंट है, कौन से चैप्टर से है, क्या पूछा है मैडम ने एग्जाम में, हमको कुछ समझ में है, तो
क्या होगा? केओस हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? फेलियर होगा। तो आप फेल ना हो, आपका फ्यूचर खराब ना हो, इसकी वजह से आपको डिसिप्लिन आप में आनी चाहिए, इसकी वजह से आपको नोटिस भेजा जाता है। अभी समझा पॉइंट? डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, आगे Yes. देखते हैं। एफिशिएंसी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऑफर्स एफिशिएंसी बिकॉज इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम सोर्स इन द पावर are able to coordinate the activities from the organization. Okay, whenever the superior person or superiors send the messages or convey the messages, that the information or the instructions are given to you, that with that power because they have the power. And why they are conveying the messages? That all the employees or all the workers should be work in the unity with the cooperation. For example, हमारे घर में भी होता है. Okay, that who is the head of the family? Who is the head of our family? Who is the head of our family? कौन होता है हमारा घर का हेड? कौन है हमारे घर का? कौन है हमारे घर के हेड? कौन है? पिताजी. पिताजी. ओके, मीन्स फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली. ओके, पापा, डैडी, कुछ भी बोलते हैं, अब्बू. ओके, तो उनका जो वो जब बातें बताते हैं हमको, जो इनका इतना इनको हमको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो सो वी फॉलो इट ना? वी फॉलो और नॉट? डू वी फॉलो और नॉट? डू वी फॉलो और नॉट? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. किस उनको इतना पावर है कि वो हमको इंस्ट्रक्शन बताते हैं. फॉर एग्जांपल, कि अभी कोविड-19 की वजह से, ओके, कोविड-19 की वजह से खर्चे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना? खर्चे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं. इनकम कम है, एक्सपेंडेंसी कैसा है? ज़्यादा है. जो खर्चा है वो तो है ही, लेकिन इनकम कैसा है? कम है. तो आपको इंस्ट्रक्शन कभी दिया जाता है, घर में बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल कहीं पे लाइट पंखा ऐसे ही जल रहा है, तो आपको बताया जाता है कि पंखा बंद कीजिए या लाइट बंद कीजिए. एम आई राइट? बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है? Yes, ma'am. हाँ, आपका खर्चा कम, आपको खर्चा करने के लिए कम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि जहाँ चाहिए वहाँ पे खर्चा करो, जो चाहिए वो लो, बाकी का खर्चा अवॉइड करो, ऐसा बोला जाता है. सभी को बोला Yes, जाता है, ma'am. ऐसा बोला जाता है. Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, ma'am. हमने कोऑपरेशन नहीं किया तो हमारा घर अच्छी तरह से चल पाएगा? कोऑपरेशन नहीं किया तो अच्छी तरह से चल पाएगा? नहीं ना? नहीं चलेगा. नहीं 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 चलेगा. ma'am. नहीं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपका जरूरत क्या है? अभी आपका जरूरत कि नेट नेट प्रॉब्लम. ओके, आपको रिचार्ज मारना है. महीना का कितना रिचार्ज मारते हो? आपका पूरा दिन ऑनलाइन लेक्चर चलता है, 4-5 घंटा लेक्चर आपका चलता है, तो वैसा लेक्चर के लिए आपको डाउनलोड भी करना पड़ता है, या वैसा यूट्यूब आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है अभी आपके लिए, या ड्रेस मटेरियल या शर्ट या कुछ और? क्या मटेरियल और इतना ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है अभी? क्या ज़रूरी है? नेट. नेट ज़रूरी है ना? ओके, लेकिन जब कॉलेज चालू हो जाएगा, फिजिकल लेक्चर चालू हो जाएंगे, ओके, फेस टू फेस लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, तभी ये खर्चा कैसा हो जाएगा? नेट का खर्चा कैसा हो जाएगा? थोड़ा कम हो कम हो जाएगा. जाएगा. कम हो ओके, जाएगा. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरा खर्चा बढ़ा दें, पेट्रोल का खर्चा बढ़ा दें, बाइक का खर्चा बढ़ा दें, घूमते रहते हैं, लेक्चर नहीं अटेंड करते, कॉलेज तो आते लेकिन लेक्चर नहीं अटेंड करते हैं, तो वो फालतू का खर्चा हम नहीं बढ़ाएंगे. जितना हम कोऑपरेशन घर में भी करेंगे, और जहाँ पे कोऑपरेशन होता है वहाँ पे काम कैसा होता है? अच्छी तरह से होता है. वहाँ पे काम कैसा होता है? बहुत अच्छी तरीके से होता है. तो दैट इज़ द थिंग. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ गोल्स. मैंने कल ही आपको बताया था. आपको ऐसा लगा कि मैडम ये बारी बारी क्यों रिपीट करें? नहीं, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं, वर्टिकल कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कौन सा है, ये समझ में नहीं आता. इसकी वजह से मैंने ये पॉइंट बारी से रिपीट किया. अभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करने का तरीके से क्या होता है? आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो बात करने के तरीके से क्या होता है? क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं कि क्या होता है बात करने? आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो क्या होता है? यहाँ पे 30 बच्चे हैं, क्या होता है? हाँ, क्या होता है?
कम्युनिकेशन सेल्स बढ़ता है। सेल्स बढ़ता है एज ए शॉपकीपर। ओके, कि चलो भाई मैं दुकानदार हूँ तो मेरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ तो मेरा सेल्स बढ़ेगा। दूसरा दूसरा एडवांटेजेस कौन से उसके, कौन सा है एडवांटेजेस? क्या होता है उसका एडवांटेजेस? लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है ना, बढ़ता है लोगों का हमारे ऊपर भरोसा का। बढ़ता है। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसा हो जाता है? क्लियर हो जाता है। कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग का चांसेस वहाँ पे नहीं होता है। दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? क्या होता है दूसरा? काम होता है कि नहीं आपका अच्छी तरह से? काम होता है कि नहीं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है आपका, हाँ। काम कैसा होता है? इजी होता है, स्मूथ होता है? यस मैम। ओके, इजी होता है, स्मूथ होता है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिया है, मुझे आप एक एग्जांपल दीजिए, मुझे एक एग्जांपल दीजिए। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको शुरुआत में बताए थे, बिगिनिंग में बताया था जब हम कम्युनिकेशन का बात कर रहे थे, तब बोलने का ढंग कैसा होना चाहिए। आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए, कैसा होना चाहिए बोलने का तरीका, टोन, आवाज हमारा कैसा होना चाहिए? अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है या नहीं करना है, लेकिन आपका बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए और कैसा इंसान होना चाहिए, बताइए। पोलाइट। हम्म, सॉफ्टली बोलना चाहिए। सॉफ्टली सॉफ्टली बोलने, बोलना चाहिए। ओके, लाइटली उससे क्या? बोलना चाहिए हमें। सॉफ्टली बोलना चाहिए। ओके, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे सॉफ्टली, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हार्डली। ओके, कि जैसा हाँ। इंसान होगा वैसा हम बात करते हैं। ओके, मैंने कल बोला था आपको। दूसरा होता है कि जितना आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, आपका जो हम बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल, वो कैसा होता है आपका? कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता बढ़ है? जाता है कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ओके, उससे आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि आपको पीपीटी प्रेजेंट करना है क्लास के सभी 100 बच्चों के सामने, तो आपकी हालत क्या होगी? जैसे पहले पहले आप पहली बार दे रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा? थोड़ा सा कम होगा, लो। लो होगा। यस मैम, लो ओके, होगा। लेकिन जब आप दूसरी तीसरी बार थोड़ा सा आपको डर लगेगा। डर लगेगा, लेकिन आपका मीन्स आप हैबिचुअल हो गए कि हाँ मैडम, मैं ही, आप खुद से सामने से मुझे आए कि मैडम मैं पीपीटी देता हूँ, मैं पीपीटी बनाता हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो मुझे कैसा दिखेगा? बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बढ़ता हुआ यस मैम। दिखाई देगा। हाँ मैम। ओके, यस तो मैम। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से आप हर, जैसे हमने रिटर्न कम्युनिकेशन का बात किया था, ओरल कम्युनिकेशन का बात किया, तो रिटर्न कम्युनिकेशन में आप बारी बारी नहीं दोहरा सकते, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में हम कैसे दोहरा सकते हैं कि नहीं? ओरल कम्युनिकेशन पर ज़्यादातर ऑडियंस होता है ना, उनको ज़्यादातर सुनना पसंद नहीं होता है, बारी बारी क्या एक रिपीट कर, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसके पास कुछ सब्जेक्ट ही नहीं है, ऐसा हम बोल देते हैं। ओके, डू वी सी द न्यूज़? आप न्यूज़ देखते हैं? आप समाचार देखते हैं? समाचार देखते हैं कोई भी? यस ओके, हाँ मैम। हाँ, देखते हैं। जी न्यूज़, एनडीटीवी, या कोई भी। ओके, कुछ भी, आज तक वगैरह, तो वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस कैसे दिखाई देता है हमको? वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस कैसे दिखाई देता है? लो, एकदम कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं। हायर, नहीं, हाय। हायर और ओवर, हायर दिखते हैं। हायर दिखता है। पर कभी कभी कैसा दिखाई देता है? कैसे कभी 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 कैसा दिखाई देता है? कभी कैसे दिखाई देता है? ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है ना? ओवर कॉन्फिडेंस भी, यस ओवर कॉन्फिडेंस भी मैम। यस मैम। नहीं होना चाहिए। ओके, गलत भी देते हैं वो लोग। बहुत बार रिपीट भी करते हैं। ओके, दूसरा एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि वो जब कॉन्फ्रेंस बिठाते हैं कि अगर वो किसी को क्वेश्चनरी पूछना चाहते हैं, क्वेश्चनरी करना चाहते हैं, तो 5-6 लोग वहाँ पे दिखाई देते हैं आपको, 5-6 लोग होते हैं साइड में नीचे, और वो बोल रहे थे, वो प्रश्न पूछ हाँ रहे मैम। होते हैं, तो यस उनका मैम। कॉन्फिडेंस देखो। और जो बाकी के जो लोग बोल रहे होते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल कोई इश्यू हो रहा है, तो सबका जो हम बोलते हैं व्यू है, वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। उस पर बोलने के लिए, उस पर बोलने के लिए डिफरेंट व्यू होगा। शायद आपने ये देखा होगा, लॉकडाउन में ज़्यादा था ऐसा, लॉकडाउन में ज़्यादा हुआ था।
ओके। कोविड-19 की वजह से जो लोग सुनते नहीं हैं डॉक्टर की बातें या डॉक्टर उनको जो बचाना चाहते, तो वो उनका जो बिहेवियर था उस पे थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, तो आपने शायद देखा होगा। तो कुछ लोगों का जो कम्युनिकेशन है कि कम्युनिकेशन करते करते हम बोलते हैं ना कि 10 बार सोचना चाहिए कि ये मैं बोल रही हूँ तो मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रही हूँ। ज़्यादातर जब ये ऐसी बातें होती है, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि स्टार्स को लेके, बॉलीवुड स्टार्स हो या सीरियल स्टार्स हो या टेलीविज़न के स्टार्स हो, ओके, उन्होंने कुछ बता दिया तो उस पर कमेंट की जाती है बाद में, इन्होंने ऐसा क्यों बोला। एम आई राइट? एम आई राइट? कभी कभी होता है कि नहीं, कमेंट होता है कि नहीं। Yes, ma'am. कभी कभी फॉर यस एग्जांपल ऐसे ही मैम। जब वो बोल देते हैं तो उन पे केसेस भी लग जाते हैं, क्लेम भी लग जाते हैं, उन्होंने पर्टिकुलर कास्ट के बारे में ऐसा क्यों बोला या पर्टिकुलर जाति के बारे में ऐसा क्यों बोला या पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में ऐसा क्यों बोला। तो शायद आपको ये पता होगा। ओके, शायद आपको ये पता होगा। ओके, दूसरा एक एग्जांपल देना है कि फॉर एग्जांपल अभी का जो ड्रग का लेके जो डिस्कशन चल रहा है, ओके, जितना ड्रग लिया जाता है बॉलीवुड में, तो आपको मीन्स मेरे हिसाब से या सबके हिसाब से सबका देखने का तरीका अलग होता है कि फॉर एग्जांपल जो ड्रग लेते हैं, ओके, कि बॉलीवुड के सभी स्टार लेते होंगे या सभी स्टार नहीं भी लेते होंगे, किसी के बारे में हम बता नहीं सकते, लेकिन कुछ स्टार नहीं लेते, ओके, उनका भी नाम आ जाता है। तो उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया था, एम आई राइट? उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ गोल्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? समझ में आ रहा है? हाँ यस Yes, मैम, या नो? आ रहा है। ma'am. कुछ लोगों का आपने इंटरव्यू देखा यस भी मैम। होगा या कुछ लोगों का कम्युनिकेशन आपने सुना भी होगा कि जहाँ पे ड्रग का नाम लिया जाता है तो सभी स्टार्स वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो सकते, कि सभी स्टार वहाँ पे नहीं जा सकते, या जिसको लेना है जिसका कंट्रोल ही नहीं है अपने आप पे, वो सही क्या वो गलत क्या उसको खुद को पता नहीं, तो वो लोग जाते हैं, वो लोग करते हैं। ओके, सो कुछ लोगों ने स्टेटमेंट भी दिया था, तो इसकी वजह से क्या होता है, अपना वो अपना जो साइड होता है वो क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। एम आई राइट? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अपना साइड क्लियर करते हैं कि सभी वैसे यस नहीं मैम। होते हैं। सो दैट इज द थिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ईज ऑफ delegation. Delegation is much easier if delegation comes directly from the vertical communication structure representing the chain of command. अभी डेलीकेसी क्या है, आपको वर्ड पता है डेलीकेसी? डेलीकेसी वर्ड पता है? नहीं मैम। डेलीकेसी, डेलीकेसी No, का ma'am. मतलब, डेलीकेसी मीन्स हम बोलते हैं ना कि स्मूथली, डेलीकेसी स्मूथली, ओके, स्मूथ गोइंग, हल्के से। तो उसको अभी फॉर एग्जांपल कि वर्टिकल, वर्टिकल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, मैंने कल आपको परसों बताया था, वर्टिकल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, क्या था वर्टिकल, मैंने क्या समझाया था आपको? प्रिंसिपल होता है, इसे बोलते हैं. क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड, आई कांट हियर यू प्रॉपरली। क्या हुआ? वर्टिकल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? हमको ऐसा नहीं करना कि आगे आगे पढ़ना है पीछे पीछे भूलना है, नहीं, सब कुछ याद रखना है। तो क्या करना चाहिए हमको, रिमाइंड करना चाहिए हमको। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? सेम लेवल से लोगों के बातें करने। नहीं, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। सेम लेवल पे होती बात होती है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? वर्टिकल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? याद कीजिए मैंने कौन सा जो एग्जाम, सभी हाँ, वर्टिकल लेवल के लोगों में कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टल होता है जिसको अलग अलग। मीर बताइए, मीर बताइए। जो सभी लोगों में होता है, मैं सभी लेवल के जो तक. वर्कर्स हो या सुपरवाइजर हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, कि सभी लेवल के यहाँ पे बात होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन। मैंने आपको हिचकी फिल्म का एक एग्जांपल दिया था, याद आया अभी कुछ? Yes, हिचकी फिल्म का दिया था, ओके। तो उसको हम वर्टिकल, कि जहाँ पे स्मूथ गोइंग रिलेशन है या जहाँ पे स्मूथ गोइंग कम्युनिकेशन है, तो उसकी हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो चेन कैसे होगा,
वो जो चेन होगा रिप्रेजेंटिंग करने का कि मुझे बात बतानी है, तो वो कैसा होगा? कमांड के साथ होगा ना, कमांड के साथ होगा। एम आई राइट? चेन ऑफ कमांड, कमांड के साथ होता है, प्रेजेंटेशन होगा वो कमांड के साथ होगा। यस तो मैम। उसको हम बोलते हैं ईज ऑफ डेलीगेशन, कि जहाँ जरा भी आप बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, कि जिसके साथ आपको बोलना है वो वहाँ पे आप जरा भी हिचकिचाए नहीं। कि फॉर एग्जांपल रिस्पेक्ट रखते हो बात अलग है, लेकिन हिचकिचाना, तो हिचकिचाते नहीं है। जहाँ पे हमको कम्युनिकेशन करना है, कि जहाँ पे सही बात बतानी है, वहाँ पे हम जरा भी हिचकिचाते नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ईज ऑफ डेलीगेशन। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। देखिए आगे का डिसएडवांटेजेस। अभी डिसएडवांटेजेस बहुत है। द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज नॉट विदाउट डिसएडवांटेजेस। फॉर एग्जांपल डिस्टॉर्शन। एवर प्लेड ग्रेफाइन गेम? दैट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैन become disconnect the proceed through the multiple levels of the organization. Okay, तो ग्रेपवाइन का मतलब पता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेपवाइन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेपवाइन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेपवाइन? पता है आपको? यस और नो? नहीं पता है तो नहीं पता है क्या? नहीं पता। ओके, नहीं पता। ग्रेपवाइन मीन्स कंप्लेन। ग्रेपवाइन मीन्स कंप्लेन, ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए। ग्रेपवाइन मीन्स उसको क्या बोलते हैं हम? कंप्लेन। ओके, सो वेन एवर द मैसेज और व्हाट वी कैन से इंफॉर्मेशन should be given from superior to lower level, that the words will be changed, structure will be changed. Am I right? Message will be sometimes changed. Sometimes message will be changed, na? Yes or no? Yes or no? ओके, फॉर यस मैम। एग्जाम्पल कि अगर मैंने आपको बताया कि कुछ आपको बताया, लेकिन आप वर्ड टू वर्ड वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल अभी का जो लेक्चर नो मैम। अभी का जो लेक्चर चल रहा है, ओके, तो लेक्चर के बारे में हम क्या बोलते हैं? कि फॉर एग्जाम्पल लेक्चर को लेके बोलते हैं, तो आप वर्ड टू वर्ड, की जो अभी प्रेजेंट नहीं है बच्चा, उसको आप प्रेजेंट करने वाले, तो वर्ड टू वर्ड बोलेंगे क्या? वर्ड टू वर्ड वैसे ही नो। बोलेंगे क्या? नो, यू विल चेंज द वर्ड्स, यू विल चेंज द आइडिया, बट यू विल स्टे टू द थीम। कि मैंने उसको क्या बोला है, मैडम ने क्या समझाया था इसके बारे में, वो आप थीम को पकड़ के रहेंगे, लेकिन आपके वर्ड्स कैसे होंगे? चेंज होंगे। आपके वर्ड्स कैसे होंगे? चेंज होंगे ना? चेंज होगी। हाँ, हाँ so that is the मैम। thing. So that is the thing. Distortion, multiple level, कि यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से आगे तक, आगे से आगे तक, जब भी वो बात स्प्रेड होती है या मैसेज कन्वे होता है, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है? चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है? चेंज हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड राइट नाउ? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, दूसरा है स्लो फीडबैक। It takes a time for message to go down the organization, then up the organization, then back down again. This means that the feedback can be slow, resulting in problem, especially in dynamic environment. Okay. So for example, यहाँ पे बताया कि slow feedback होता है. The message should be conveyed, but the feedback will become in a slower manner. The feedback will become in a slower manner. Understand? Not understand? Understood or not understood? यस मैम। कैसे? अंडरस्टैंड। कैसे कैसे बताइए मुझे, कौन सा एग्जांपल देंगे? टाइम बताइए। टाइम कंज्यूमिंग। यस, टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर फॉर एग्जांपल आपके पास जब तक मैसेज पहुंच जाता है, फिर आगे क्या होता है? उसका फीडबैक उसके जल्दी से बाद देते हैं? नहीं। कैसे देते हैं? बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग आपको। फॉर त्याच्यावरती एग्जांपल, विचार करून मग ओके ओके ओके, दूसरा एक एग्जांपल देते मैं तुम्हाला कि फॉर एग्जांपल आप अमूल की फैक्ट्री में गए, जहाँ पे चीज़ वगैरह वगैरह बनाया जाता है ना, अमूल की फैक्ट्री में गए, ठीक है? अमूल चीज़ वगैरह जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे सब कुछ बेचा जाता है, सब कुछ बनाया जाता है, ओके। तो वहाँ पे देखिए आप कि हर एक जो हम बोलते हैं डिपार्टमेंट, कि फॉर एग्जांपल चीज़ बनाने का डिपार्टमेंट, या फॉर एग्जांपल बटर बनाने का डिपार्टमेंट, या कुकीज़ बनाने का डिपार्टमेंट, फिर जो थाली में दूध भरा जाता है,
ओके, उसका पैकिंग का डिपार्टमेंट, उसको हम पैकिंग बोलते हैं, वो पूरा डिपार्टमेंट अलग रहता है। एम सब जगह अलग अलग रहता है ना। अब ओके, Yes, ma'am. अगर किसी डिपार्टमेंट में, आप शायद आपने देखा नहीं होगा, किसी फैक्ट्री में गए होंगे तो डिपार्टमेंट में पूरा स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पूरा वो क्लोज होता है, तो वहाँ से मैसेज आपको किसी को भेजना है, ओके, तो मैसेज तुरंत ही वो सुपरवाइजर के पास चला जाएगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, चलो मैसेज चला भी गया, फ़ोन थ्रू या मोबाइल थ्रू या बेल थ्रू मैसेज चला भी गया, लेकिन उसका फीडबैक कि जो रिपेयरमेंट आने वाले हैं, रिपेयरमेंट करने आने वाले हैं, तो वो क्या जल्दी से आ जाएंगे? No, नहीं आएंगे, उसको आने में क्योंकि टाइम टाइम लगेगा। लगता है, उसको आने में क्या लगता है? टाइम लग रहा है, एक टाइम कंज्यूमिंग, कि whether the people are available there or not, that is the question, okay, that is the question, okay। दूसरा आपको एक एग्जांपल देना हो तो मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी हम जो प्रॉब्लम से गुजरे सभी, ओके, अभी के सभी के जो प्रॉब्लम से हम गुजरे कि 3 जून को यहाँ पे साइक्लोन आया था हमारे यहाँ पे दापोली में, ओके, आया था, सब जगह, आपको शायद आप कोकण में रहते तो आपको पता होगा, तो Yes, उसकी वजह से ma'am. हाँ, यस मैम। Yes, ma'am. नुकसान बहुत भारी मात्रा में हुआ, नुकसान हुआ ना, नुकसान बहुत हुआ, भारी मात्रा में हाँ। नुकसान हुआ, तो हाँ। उसका फॉर एग्जांपल आपको जब भी चाहिए, प्लम्बर चाहिए या जो रिपेयरमेंट वाला चाहिए, मैसेज आपने भेज दिया, फ़ोन कर रहे, फ़ोन नहीं लग रहा है, फिर भी आप बारी बारी मैसेज करें, फ़ोन करें, लेकिन उसका फीडबैक आपको जल्दी मिला क्या? उसका फीडबैक आपको जल्दी मिला? नहीं। मैम नहीं। नहीं मिला, क्योंकि because there would be the shortage of the people at that time, तो जो रिपेयरमेंट करने वाले थे, क्योंकि काम ज़्यादा था, इंसान कैसे थे? काम ज़्यादा था, सबके घर में कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ था, किसी का घर टूटा था, किसी का हाँ। छत टूटा था, कुछ ना कुछ तो हुआ था, तो वहाँ पे काम करने वाले इंसान कैसे थे? कम थे, और हम बोलते हैं कि वो काम कैसा था? ज़्यादा था, तो फीडबैक जल्दी से मिलता नहीं है। समझ में आया? ये तो Yes, ma'am. यस ओके, मैम, यस मैम। आगे का पॉइंट देखते हैं। इंटरप्रिटेटिव प्रॉब्लम्स, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन प्रेजेंट द इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ distortion effects and slow feedback for the message clarification, okay। Interpretative problems, interpretation means explanation, कि जब भी whenever the message should be conveyed from one person to another or the one group to another, the interpretation should be changed। मैंने जैसे अभी आपको बोला कि स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो फीडबैक मिलता है, ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको फ़ोन लगा रही हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं कुछ और बोल रही हूँ, आप कुछ और सुन रहे हैं, तो फीडबैक कैसा होगा? क्लैरिफिकेशन होगा, वहाँ पे क्लैरिफिकेशन होगा? अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, सो दैट इज द डिफरेंस थिंग। होगा। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, डिफरेंस होगा, ओके। तो प्रॉब्लम अराइज, ओके, तो इसकी वजह से होता है कि वहाँ पे इंटरप्रिटेटिव प्रॉब्लम आ जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड राइट नाउ? डू यू अंडरस्टैंड? यस और Yes, नो? ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। यस मैम। लोअर्स मोरल, उसका मतलब क्या? आगे देखिए, यहाँ पे है, हाँ है। Given the time communication takes and the problem with the distortion message, downward communication can have the negative impact of the organization's moral. Okay, so the message should be conveyed from superior to downward workers. That message is passing from one person to another. That moral should be also down. Moral should be also down. समझ में आया कि नहीं आया? मोरल मतलब क्या? मोरल मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉन्ग मोरल? और राइट, हम्म, रॉन्ग और राइट
Wrong or right? Okay, means you are aware. उसको moral means right thing, not wrong or right. Moral means right thing. Right thing should not be conveyed. Okay, कि for example कि एक बढ़िया कविता है, ओके, तो उसमें से आपको मैसेज मिलता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, कुछ बहुत बहुत बढ़िया मैसेज होते हैं जिसको हमको क्या मिलता है, मोरालिटी, वी लर्न समथिंग फ्रॉम इट, एम आई राइट? वी लर्न समथिंग फ्रॉम इट, एम आई राइट और नॉट? यस और नो? Yes. ओके, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि आप सुबह सुबह उठे, अपने हाथ में मोबाइल लिया है, किसी ने वीडियो भेजा है आपके साथ घटिया मजाक, आपको बाद में पता चलता है, आपने वीडियो ऑन किया, थोड़ा सा डरावना है, तो फिर आपका रिएक्शन कैसा होगा? रिएक्शन कैसा होगा आपका? डरावना, हॉरर वाला, सुबह सुबह में, तो कैसा होगा आपका रिएक्शन? कैसा होगा रिएक्शन? कैसा होगा आपका? डरावना वीडियो भेजा है सुबह सुबह में, आप देख रहे हैं, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? हाँ, सुन भी रहे हैं? हेलो, कैसा Yes, होगा ma'am. रिएक्शन? रिएक्शन कैसा होगा Yes, आपका? ma'am. मैंने आपको क्या बोला कि आपको हॉरर कुछ भेजा गया है जो आपको लिए सरप्राइज है, आपने ओपन किया, देखा पूरा, और बाद में लास्ट में आपको पता लगा कि ये हॉरर है, थोड़ा सा डर गए, तो सुबह सुबह में उठते उठते आपने ऐसा देखा, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? कैसा होगा आपका? कैसा होगा रिएक्शन? थोड़ा चिड़ हाँ, थोड़ा सा गुस्सा आएगा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आएगा कि सुबह सुबह में ऐसे लोग क्यों मैसेज भेजते हैं, एम आई राइट? नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देते हैं, चिड़ा Yes, होगा। ma'am. चिढ़ होगा। ओके, so the whenever the message will be given, okay, with the distortion, that the negative impact is seen in the message, or the negative impact is seen on individual also. Okay, if I send you every day good story, okay, every day, then you will get something na, will you get something na? अगर मोरालिटी वाली Yes, ma'am. आपको स्टोरी भेजा जाता है रोज आपको, Yes, तो आप ma'am. वहां से कुछ ना कुछ सीखेंगे, लेकिन मैं आपको वो जो आपको नहीं देखना चाहिए, या फॉर एग्जांपल हॉरर वाला, या कुछ ऐसा सोशल इश्यू वाला, कि जो पिक्चर्स हम इमेजेस नहीं देख सकते, वैसा भेज दिया तो क्या होगा? वैसा भेज दिया तो क्या होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा, नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। हाँ, यस मैम, यस Yes, ma'am. दैट मैम। इज द थिंग। ओके, आगे का देखिए, नॉट मोटिवेटिंग, द गिवन द स्लो फीडबैक and the depends on the formal channels of communication. This method of communication uh, doesn't really have the motivation. कि जो हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर हमको जैसे फीडबैक स्लो होता है, कि उसमें इंफॉर्मेशन किस तरह से जाती है, ये उस पर डिपेंड रहता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, द मेथड ऑफ communication, this method communication doesn't really have the motivation नहीं रहता उसमें, मोटिवेशनल फैक्टर नहीं रहता है। समझा कि नहीं समझा? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, ma'am. कैसे, बताइए मुझे कैसे? अगर आपको ये पॉइंट समझा तो कौन सा एग्जांपल देंगे इफ यू अंडरस्टूड? आपको किसी कोणीतरी आपल्याला येतं आणि सांगतं की असं असं करायचंय, तर ते एवढं मोटिवेशनल वाटत नाही. हा ठीक आहे, करू आता नाही, नंतर करू असं. ऐसा नहीं, आप नहीं समझे। दूसरा मोटिवेशनल नाही. दूसरा 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 कौन सा एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल के जब हमें लेट उसका फीडबैक मिलता है तो हम उस चीज को भूल, ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई एक पोएम हो, उसका फीडबैक हमें लेट मिला तो हम उस पोएम को और उसके मोटिवेशन को भी भूल जाते हैं जब उसे फीडबैक लेट मिलता है तो। पोएम को लेके, पोएम की बात कर रहे हैं आप, पोएम की बात कर रहे हैं ना, पोएम की बात कर रहे हैं ना? यस और नो?
ओके मैं आपको एक एग्जांपल ओके हाँ, इफ यू ma'am. आर गो फॉर स्विमिंग, आप स्विमिंग क्लास लगाया आपने बराबर, Yes, इफ यू ma'am. गो फॉर स्विमिंग ओके, वहाँ पे इनिशियली आपका ध्यान रखा जाता है कि चलो भाई आप नए हैं, न्यू कमर्स है, तो आपका ध्यान रखा जाता है। Okay. लेकिन जैसे आप सीख लेते हैं, ओके सीख लेते हैं, अगर आपको शुरुआत में आपका ध्यान नहीं रखा जाए कि आपको जब आपको ज़रूरत है कि आप डूब रहे हैं, आपको कोई बचाने वाला पे नहीं है, वहाँ पे कोई स्विमर नहीं है, वहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं है, तो क्या होगा? अगर मैसेज ही वो उस ट्रेनर तक नहीं मिला, फीडबैक आपको नहीं मिलता है, तो वो क्या होगा? मोटिवेशन होगा आपके लिए, मोटिवेशनल होगा, स्विमिंग आपके लिए मोटिवेशनल होगा। वो जो हम बोलते हैं एक एक्टिविटी, स्विमिंग एक्टिविटी आपके लिए मोटिवेशनल होगा, मोटिवेशनल होगा कि नहीं होगा? मोटिवेशनल होगा। समझा कि नहीं समझा? अभी भी नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? No. For example, if you are going for swimming activity, okay, if you are going for swimming activity, in the initial part the trainer uh, give more concentration on you or concentrate on you, but as you are learning, after that he is also engaged for the newcomers, okay, कि वो उसको जो नए बच्चे आते हैं उसको एडजस्ट करने में या उसको अरेंज करने में वो लग जाते हैं। लेकिन वेन एवर द फीडबैक विल नॉट बी गिवन कि आप डूब रहे हैं, कि आपका मैसेज ही वहाँ तक नहीं पहुँचा, वो ट्रेनर ही नहीं आया, तो कैसा होगा? वो कम्युनिकेशन कैसा होगा आपके लिए? वो हादसा कैसा होगा कि फॉर एग्जांपल आप डूबते डूबते बच गए, तो आपके लिए वो हादसा कैसे होगा? कैसे होगा आपके लिए वो हादसा? डरावना होगा ना? यस और नो? डरावना होगा Yes, और ma'am. नहीं? हाँ, Yes, ma'am. वही कि उसको जहाँ तक मैसेज नहीं मिलता कि सर ये बच्चा डूब रहा है, ओके सर बाहर गए Yes, या ma'am. कुछ, हाँ दैट इज द थिंग कि जब तक फीडबैक मिलता नहीं, स्लो फीडबैक मिलता है, ओके, तो वो किस तरह से उसको मैसेज मिलता है या कुछ क्या होता है, तो उसकी वजह से वो मोटिवेशनल नहीं होगा, वो चीज़ आपके लिए क्या होगा? मोटिवेशनल नहीं होगा। ठीक है, समझा? समझा अभी? डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. Yes. ओके वी शैल स्टॉप हियर, वी शैल स्टॉप हियर। ठीक है, Okay, ma'am. ओके Okay.